Alright, hello everyone. This is AJ here, and today's market video will be made by me. So this week is going to be important one since there is a budget. First Pepco budget hoga, which is Thursday, which is also the Nifty expiry. So before that, we have three sessions pre-budget. So we'll discuss कि exactly उसके पहले कैसे market setup हो सकता है, already कहाँ पे structurally setup है market. So we'll start with Bank Nifty first. Since we are seeing that ki last few days mein there was an intense sell-off. Bank Nifty fell from 48,000 to 45,000 in within 5 to 6 sessions due to HDFC Bank. But right now, Bank Nifty is currently at support, just not from the horizontal support scenario. If you guys know what is the Fibonacci, then you will see that कि यहाँ से अगर हम इस पूरे swing का Fibonacci mark कर दे तो 61.8% comes around here, which has acted 2 days in a row. Properly वहाँ पे support लेने की कोशिश करी गई market ने. So we'll assume that 44,600 which is also horizontal resistance इसे हम support मान के चलेंगे. Okay. So right now we are seeing that कि top से market जो गिरा है that is currently at the support. So whenever market has support and eventually आपने लास्ट जो एक्सपायरी था उसमें ये भी देखा होगा कि एंड ऑफ द डे में आपको एक अच्छा खासा रैली देखने के लिए मिला था. दिस वाज ड्यू टू एचडीएफसी बैंक. सो देयर इज सम काइंड ऑफ न्यूज आल्सो. So we might open with little bit of gap up. So there is a probability कि शायद से बैंक निफ्टी might open up above 45,100 150 मे बी इसके ऊपर या फिर इसी के आसपास में कहीं पे ओपन हो सकता है. हाउ शुड वी ट्रेड? सो द बेस्ट थिंग राइट नाउ टू डू इज कि जब भी कोई इंटेंस सेल ऑफ आता है उसके बाद में नीचे सपोर्ट से लेकर के मार्केट शोज दैट इट इज टेकिंग अ सपोर्ट एंड बायर्स आर कमिंग इन, यहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा सा इजी हो जाता है सिंस वी नो दैट दीज बायर्स आर गोइंग टू हैव सम काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव. इनका कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव रहेगा. So we'll mark some resistances and we can trade longs till that level. For example, 45,485 which is also previous का अगर हम resistance भी mark करके रखते हैं which is around here. So 45,485, 45,500 basically this is going to be a resistance for the day. लेकिन अगर इसी के आसपास में अगर कहीं पे ओपन हो जाता है and it sustains around here, then अगर ब्रेकआउट आता है ऊपर की तरफ then you can trade this long for दिस मूव. सो इस टाइप का अगर कोई सिनेरियो अगर बनता है तो कंप्रेशन के बाद में हम यहाँ पे एक लॉन्ग ले सकते हैं विच कैन रिवॉर्ड अस वेल. Same scenario we can do for shorts also since this range is going to be very important. I think this can be intraday range unless we open directly gap up above this. अगर इसी रेंज में फिर से अगर खुल जाता है तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट हाफ में शायद से हमें साइडवेज सिनेरियो दिखने को मिल सकता है. Might also get to see a test of this kind of scenario and then यहाँ पे फिर से हम ऊपर की तरफ ऐसा एक मूव देखने के लिए मिल सकता है. ओके, सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ करंट स्ट्रक्चर की अभी के लिए अपन ओवरसोल्ड जोन में है एंड बैंक निफ्टी इज एट सपोर्ट एंड वहां से बायर्स एक्ट हो रहे हैं. सो इट इज बेटर आइडिया टू ट्रेड लॉन्ग्स विद गुड टारगेट्स इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग शॉर्ट्स. अगर शॉर्ट्स ट्रेड करना है तो यू शुड बी ऑन अ स्कैल्पिंग मोड. Now, when should we trade shorts aggressively? Basically, this support of 45,400, sorry, 44,400 and 44,600, this is going to be important support. अगर इसके नीचे breakdown होता है, for example, we get to see a gap down open, sudden gap down, surprise हो गया कुछ, market, anything can happen. If there is a gap down and in any case, if this level is broken again, which has been tested multiple times, then in only that case there is a probability कि हमें इसके नीचे एक intense sell off देखने के लिए मिलेगा. Now, what is the view? Basically, इस cases में अगर ऐसे cases में जब भी when there is a event coming, market generally एक extreme side पे close नहीं करता है before the event happens. मतलब there is a probability that कि budget से पहले we might see some move like this. यहाँ पे कहीं पे market can stabilize एंड देन जिस तरीके से भी न्यूज आएंगी बजट के हिसाब से उसके हिसाब से वी कैन सी मूव अपसाइड और मूव डाउन साइड. वो दैट इज लिटिल अनप्रेडिक्टेबल. लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि वेन एवर वी गेट टू सी दैट की रेंज यहाँ पे बीच में जब भी सेटल होता है इट क्रिएट्स अ बफर ऑफ रेंज ऑन द बोथ साइड्स. मतलब यहाँ से कुछ भी सरप्राइज अगर आ गया, पॉजिटिव सरप्राइज हो गया या फिर नेगेटिव सरप्राइज हो गया, मार्केट के पास में एक स्पेस रहता है दोनों साइड में मूव करने का. इंटेंस अगर इसके नीचे ही यहीं पे अगर क्लोज होता है प्री बजट मार्केट एंड देयर इज एक्सट्रीमली नेगेटिव न्यूज, देन मार्केट कैन गिव अ ब्रूटल सेल ऑफ फ्रॉम हियर. अदरवाइज अगर यहाँ पे बीच में कहीं पे अगर रहता है मार्केट, इट क्रिएट्स अ बफर ऑन द बोथ साइड्स एंड इवेंचुअली हमें क्या होता है कि मार्केट के पास में एक स्पेस मिल जाता है टू रिएक्ट प्रॉपर्ली टू द न्यूज एंड इमीडिएटली एक बहुत बड़ा रिएक्शन ट्रिगर नहीं होता है. सो this is the observation that we have made in past few years of trading budget. So this is what the expectation of next three sessions basically. So one important thing to know here, 31st January, the day before budget is Bank Nifty expiry and 1st Feb is the actual budget जहाँ पे
मंथ निफ्टी एक्सपायरी है, देयर इज बजट ऑल्सो. So there is a likelihood that कि 31st जनवरी का जो एक्सपायरी होगा that is going to be little bit of नॉन इवेंट वन. तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी इज गोइंग टू बी पॉसिबली जो रेंज होना चाहिए बैंक निफ्टी का फॉर दिस एक्सपायरी कुड बी बिटवीन 45,000 से लेकर के 46,000 इस रेंज में होगा. इट कैन बी नैरो डाउन टू 45,500 टू 46,000, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट to see that how the markets react to the HDFC news. Okay, so that was about Bank Nifty. I hope you got an idea what I'm trying to say. Now let's shift to Nifty. Now Nifty case में there is not an intense sell off. मतलब यहाँ से आप टॉप से देखेंगे तो Bank Nifty has given more sell off due to HDFC Bank, लेकिन Nifty में almost 4.5% का एक करेक्शन था, and which has multiple times after breakdown आप देखेंगे कि eventually it was closing inside the range. तो जब भी ऐसा होता है दैट मीन्स कि एवरी टाइम प्राइस इज ब्रेकिंग बिलो अ सपोर्ट. फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट था, इसके नीचे ब्रेकडाउन कर दिया, लेकिन फिर से उसी रेंज में आके ये स्टेबलाइज हो रहा है, फिर से रेंज लो ब्रेक हो गया, लेकिन फिर से रेंज में आके स्टेबलाइज हो रहा है. तो इसका मतलब ये होता है कि बायर्स आर स्टिल इन द गेम, सेलर्स आर नॉट एबल टू टेक कंप्लीट कंट्रोल. ऐसे केसेस में इमीडिएटली टू ट्रेड शॉर्ट्स whenever market is trading at lows doesn't make sense. जनरली यहाँ से आपको अपस्पाइक की तरफ से जो मोमेंटम आएगा, मतलब ऊपर की तरफ बायर जो मोमेंटम लेकर के आएंगे, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट उस मोमेंटम को ट्रेड करने में आपको प्रोबेबिलिटी है कि ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड बेटर मिलेगा, प्लस यू माइट गेट इवन गुड मोमेंटम ऑल्सो विच कैन हेल्प यू इन द ऑप्शन बाइंग सिनेरियो. सो निफ्टी केसेस में व्हाट आर द लेवल्स? सो बेसिकली ये जो थर्सडे का हाइज है, सॉरी वेडनेसडे का जो हाइज है 21,480, ये प्रीवियसली भी अगर हम मार्क करने जाएंगे तो इट विल बी नोटेबल दैट दिस हैज बीन ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस. यहाँ पे भी देखेंगे तो इस वाज द क्लोज ऑफ दिस डे. उसके बाद में दिस ये जो बड़ा सेल ऑफ आया था उसका पुल बैक का भी एरिया था. सो प्रोबेबिलिटी ये है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन बन के आ सकता है. वी हैव टू सी दैट की ओपनिंग एग्जैक्टली कहाँ पे हो रहा है, मतलब इज इट ओपनिंग डायरेक्टली अबव दिस 21,480 500 की ऊपर ही ओपन होकर यही पे सस्टेन कर रहा है, देन थिंग्स माइट टर्न बुलिश. लेकिन अभी के लिए वी हैव टू सी दैट कि वेयर इट ओपन्स. अगर इसी की रेंज में अगर ओपन हो गया देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट हाफ में जस्ट लाइक बैंक निफ्टी वी कैन सी दैट कि निफ्टी यहाँ पे थोड़ा साइडवे जा सकता है, एंड देन ईदर साइड ब्रेकआउट होके वी कैन गेट टू सी अ मूव. सो जैसे बैंक निफ्टी के केस में डिस्कस किया, व्यू इज ऑल्सो सेम फॉर द निफ्टी. निफ्टी के लिए जो लेवल्स डिस्कस करना चाहता हूं मैं दैट आर प्री बजट, मतलब बजट से पहले मार्केट कैन स्टेबलाइज विद इन दोज लेवल्स. तो यहाँ पे सी दैट कि यहाँ पे 21,750 का जो एरिया है 21,800 तो स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस है, लेकिन 21,750 800 कुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस गोइंग फॉरवर्ड. मतलब नीचे की तरफ भी नीचे की तरफ भी यहाँ से 21,135 से ऑलमोस्ट अराउंड इफ यू गेट टू सी अ मूव ऑन अपसाइड हियर, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि इसी रेंज में अगर स्टेबलाइज हो गया देन वी हैव इनफ स्पेस लेफ्ट बिफोर द बजट. तो वही जो बैंक निफ्टी का लॉजिक यूज किया, निफ्टी कुड स्टेबलाइज बिटवीन दिस जोन और 21,600 और ले से 550 से लेकर के 750 के रेंज में यहीं पे कहीं पे स्टेबलाइज हो सकता है, नॉट एट द एक्सट्रीम हाइज और नॉट एट द एक्सट्रीम लोज, सो दैट market can react properly if there is any unexpected news from the budget. कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड अगर अनाउंसमेंट हो गया तो मार्केट के पास में एक स्पेस रहता है रिएक्ट करने के लिए ऑन द बोथ साइड. सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि इसी रेंज में स्टेबलाइज होते हुए दिख सकता है मार्केट. एंड इन द सेम वे जैसे हमने बैंक निफ्टी केस में डिस्कस किया, व्हेन डू थिंग्स टर्न बेरिश? सो व्हेनेवर बैंक निफ्टी ब्रेक्स दैट 44,400 एट द सेम टाइम निफ्टी इज ब्रेकिंग बिलो दिस 21,250, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हमें ये लो टेस्ट करने के लिए मिल सकता है 20,976, जो कि एक शार्प सेल ऑफ जो है तो उसके बाद में रिवर्सल हुआ उसका लो है. सो दिस कैन बी अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट गोइंग फॉरवर्ड. एंड ओपिनियन की अगर हम बात करें तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट दिस माइट नॉट हैपन, वी माइट गेट टू सी स्टेबलाइजेशन इन निफ्टी इन दिस एरिया, सो दैट देयर इज अ इनफ बफर जोन बिफोर द बजट. ओके, मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है कल. सो since the news was directly with HDFC Bank, only banks reacted, Bank Nifty reacted, also Nifty reacted at some extent. लेकिन मिड कैप निफ्टी बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया सिंस इट वाज नॉट रिलेटेड टू द न्यूज. सो इन दिस केसेस एंड ऑफ द डे में आप रिकवरी देखेंगे तो मिड कैप निफ्टी ने ऐसा कुछ खास रिकवरी दिखाया नहीं है. डेली चार्ट्स में दो देयर इज अ गुड ऑब्जर्वेशन दैट यहाँ पे आपको चार्ट थोड़ा डिस्टॉर्टेड नजर आएगा, मतलब इट इज मेकिंग हाइज लेकिन इट इमीडिएटली गेटिंग सोल्ड ऑफ. यहाँ पे बड़ा सेल ऑफ आया, फिर से पूरा रिकवरी दिया, फिर से बड़ा सेल ऑफ आया, फिर से पूरा रिकवरी. इन दैट केस इफ वी गेट टू सी दैट कि ये मूव नीचे की तरफ फॉलो अप देने में नाकामयाब अगर रह रहा है, दैट मीन्स इफ मार्केट्स आर नॉट एबल टू ब्रेक अगेन बिलो 10,280 10,170, दैट मीन्स
sellers are not able to give a follow up on the whatever move they are initiating. इसके नीचे अगर follow up नहीं देखने के लिए मिल रहा है, follow up selling अगर देखने के लिए नहीं मिल रहा है, then there is a probability that कि हमें eventually जो move है वो ऊपर की तरफ देखने मिलेगा, and this move might happen with extreme momentum. जब भी डाउनसाइड की तरफ का कोई भी फॉलो अप जब भी फेल होता है, मतलब sellers are not able to give follow up, यहीं पे अगर फिर से Midcap Nifty opens up somewhere around here 10,450 400 levels and यहीं पे अगर stabilize हो जाता है फिर से, then trading shorts then might not be a great idea since there is a follow since sellers should give a follow to initiate a bigger sell off. अगर इसी रेंज में फिर से अगर sustain हो गया and there is a probability कि हमें eventually ऊपर की तरफ एक मूव देखने के लिए मिल सकता है. So we should be very cautious. रेंज जो रहेगा मिड कैप निफ्टी के लिए दैट इज वेरी विजुअल, दैट इज 10,300 से लेकर के 10,180 इज अ गुड सपोर्ट एरिया जहां से मल्टीपल टाइम सेल ऑफ्स कंटेन हुए हैं लास्ट 2-3 वीक्स में एंड उसके बाद में एक रैली इनिशिएट हुआ है. ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो दिस कुड बी प्रोबब्ली ए स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस 10,600 एंड इवेंचुअली द ईटीएच इसके आसपास में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनने का प्रोबेबिलिटी है. लेकिन अगर यहीं पे स्टेबलाइज हो गया तो इवेंचुअली resistance breakout might be attempted by midcap nifty in which case you can see move like this. तो probability एक ऐसा मूव बन सकता है. जस्ट रिमेंबर द वन पॉइंट कि अगर सेलर्स ने फॉलो अप दिया एंड स्ट्रॉन्ग फॉलो अप दिया तो ही एक करेक्शन का पॉसिबिलिटी बनता है, अदरवाइज द प्राइस एक्शन दैट इट इज शोइंग इज लिटिल बिट ऑन द बुलिश साइड. मतलब यहाँ पे जो मैंने अभी क्लू बताया आपको कि ये जो सेलिंग आया है इसका फॉलो अप अगर नहीं आता है, दैट मीन्स इफ द मार्केट अगेन स्टेबलाइजेस इन दिस जोन, देयर आर नो सेलर्स हियर एंड दे आर नॉट ट्राइंग टू पुश द प्राइस डाउन एंड यहीं पे अगर होल्ड हो रहा है प्राइस, देन इवेंचुअली odds of moving up increase instead of going down. So in this case this kind of blueprint we can see. Okay, also fin nifty एक बार डिस्कस कर लेते हैं. since it is a resembling structure with bank nifty, we can see that कि यहीं पे same just like nifty structure बैंक निफ्टी स्ट्रक्चर सॉरी, यहाँ पे 61.8% के आसपास सपोर्ट मिला है. सो सेम प्लान जो हम बैंक निफ्टी के लिए डिप्लॉय कर रहे हैं, सेम थिंग वी कैन से अबाउट फिन निफ्टी ऑल्सो, as it can face a resistance somewhere around here that is 20,320 and अगर इसके ऊपर अगर ओपन हो गया तो फर्स्ट हाफ tomorrow we can see that it can go sideways, sorry it can अगर ओपन 28,150 180 की इसी रेंज के अगर ऊपर होता है तो इमीडिएटली ब्रेकआउट आना थोड़ा फर्स्ट हाफ में मुश्किल है. इट कैन जस्ट गो साइडवेज इन दिस एरिया समथिंग लाइक दिस. ऐसे इसी रेंज में साइडवेज आने के बाद में इट कैन क्रिएट अ रेंज, कंप्रेस अ लिटिल बिट एंड देन गिव ब्रेकआउट ऑन ईदर साइड एंड ऐसे कुछ मूव बन सकता है. देन ऑब्वियसली जैसे बैंक निफ्टी का भी लॉजिक है टू क्रिएट अ बफर ऑन द बोथ साइड, दैट आल्सो अप्लाइज फॉर फिन निफ्टी. नाउ सिंस एचडीएफसी बैंक का न्यूज है, फिन निफ्टी कैन रिएक्ट वायलेंटली. वी हैव टू सी दैट कि एचडीएफसी बैंक एग्जैक्टली कितना ऊपर ओपन होता है, फिर कहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, फिर it doesn't open gap up and instead it opens gap down. So anything can happen in such cases. So you have to see that how HDFC Bank opens. If the reaction is aggressive, we can choose to trade Fin Nifty since it will be the index that will react most violently. ऐसे केस में अगर गैप अप बहुत बड़ा हो गया and Fin Nifty if opens above this, then there is a probability कि हमें थोड़ा सा एक short covering type scenario देखने मिल सकता है first half में and then it might go sideways in the second half. So it all depends upon how the reaction is of HDFC Bank after this news. Maybe this news was already known to the market and eventually हमें end of the day rally देखने के लिए मिला, but it is most important to know that कि opening के बाद में क्या reaction आता है. Based on that, Nifty might react as well. Okay, so that's the overall structure that I'm able to understand from this given scenario. Basically, all of this comes down to the one single point that I discussed. At pre-budget, market should establish a buffer range on the both sides so that there is enough space left to react on the both sides. That range could be 45,500 से लेकर के 46,000, इस 500 से 800 पॉइंट का रेंज हो सकता है बफर में जाने के लिए. या फिर वी कैन सी दैट कि बजट से पहले अगर कोई वायलेंट रिएक्शन अगर आता है या फिर कोई रिजल्ट्स अगर एक्चुअली बैंक्स के सारे रिजल्ट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ओनली आई थिंक एसबीआई रिजल्ट इज पेंडिंग, सो दैट कैन ट्रिगर सम मूव. लेकिन ओवरऑल जो व्यू है वो यही है कि बजट से पहले वी माइट सी अ रेंज फॉर्मेशन इन ऑल ऑफ द इंडाइसेस एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू फॉर्म द ट्रेड्स. ओके, so I hope you got a clear idea of the expectations and if there are any doubts please let me know in the comments, and if you like the video do like and share. Okay, so that's it for the time being. This is AJ signing off. See you soon. Bye.